Welcome, my dear students of grade 7. In today's video, we are going to study of the role of women in reforming their position. We will study the different women who work to reform the position of the women in the society. And among them, the first of all is Pandita Ramabai. It is the picture of Pandita Ramabai. Pandita Ramabai was given the title of Pandita because she could read and write Sanskrit. Because at that time it was not allowed for women to read and write Sanskrit. That is why she has given this title Pandita Ramabai. And she also worked for the education for the women in India. Let us study more about the contribution of Pandita Ramabai in improving the position of women in India. Contribution of Pandita Ramabai in reforming the position of women in India. She was a real architect of फीमेल एजुकेशन इन इंडिया. अगर सही मानों में समझा जाए तो अगर वुमेन एजुकेशन पॉसिबल है इन इंडिया बिकॉज ऑफ पंडिता रामाबाई. शी वाज अ ग्रेट सोशल रिफॉर्मर. एक बहुत अच्छी समाज सुधारक थी जिन्होंने समाज में सुधार लाने के लिए वुमेन्स की पोजीशन को इम्प्रूव करने के लिए बहुत से कार्य किए. She was well versed in Sanskrit and wrote strongly about the pathetic plight of widowhood, child marriage, polygamy in her book. The title is The High Caste Hindu Woman. उन्हें संस्कृत की काफ़ी अच्छी नॉलेज थी जिस कारण से उनको टाइटल मिला था पंडिता. एंड शी हैड wrote strongly about द पैथेटिक प्लाइट. मीन्स उस समय विडो मीन्स अगर किसी के हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उस वुमेन को बोला जाता है विडो. उस समय उनकी क्या हालात थे, क्या कंडीशन होती थी, उनके बारे में उन्होंने अपनी बुक में लिखा है द हाई कास्ट हिंदू वुमेन. एंड आल्सो अबाउट द चाइल्ड मैरिज कि चाइल्ड मैरिज के क्या कारण है और इसके रिजल्ट क्या हो सकते हैं. अबाउट द पॉलीगैमी. पॉलीगैमी मीन्स बहुविवाह. जब एक आदमी एक से ज़्यादा मैरिज करता है उसे बोलते हैं पॉलीगैमी. उनके बारे में अपनी बुक में लिखा है और लोगों का ध्यान इन प्रॉब्लम्स की तरफ दिलवाया कि इस कारण वुमेन्स को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है. She wanted to draw attention of the society towards the condition of women. History reveals that she lived up to her promise and reviving the status of women in the society. इसके लिए कह सकते हैं इतिहास पूरी तरह से गवाह है कि उन्होंने अपने प्रॉमिस को पूरी तरह से निभाया है और वुमेन्स के स्टेटस को सोसाइटी में बढ़ाने के लिए पूरी लाइफ अपनी लगा दी. बिकॉज ऑफ हर efforts, women education is made possible in India and people came to know about the different social evils that are prevailing in the society and work for these to remove from the society. Next woman reformer in this field is Ruqayya Shekhawat Hussain. She was a Muslim woman and also worked for the education of women in the Muslim society. She has learned Urdu, but at that time Muslim women were not allowed to read and learn Bangla and English. But with the help of her elder brother Ruqayya, Shekhawat Hussain learned to read and write Bangla and English and also opened school for the Muslim girls to get the education. Let us know more about Ruqayya Shekhawat Hussain and their contribution.
Contribution of Ruqayya Shekhawat Hussain. Ruqayya Shekhawat Hussain was born in rich Muslim family in 1880. She learned Urdu but was not allowed to read and learn Bangla and English at that time. Society was the view that education corrupted the woman. उस समय उन्होंने उर्दू तो पढ़ना सीख लिया था बिकॉज शी बिलोंग टू ए रिच मुस्लिम फैमिली बट वुमेन्स ऑफ दैट टाइम आर नॉट अलाउड टू गेट एजुकेशन बिकॉज पीपल बिलीव दैट द एजुकेशन मेक द वुमेन्स करप्टेड कि वो अपनी जो रास्ते से भटक जाएंगी अपना काम ठीक से नहीं कर पाएंगी तो इस कारण से उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करवाई जाती थी इसलिए उन्हें भी बांग्ला और इंग्लिश लैंग्वेज सीखने से मना किया गया बट रुकैया लर्न टू रीड एंड राइट बांग्ला एंड इंग्लिश विद द हेल्प ऑफ अ एल्डर ब्रदर She was married to Khan Bahadur Hussain in 1896 with the help of her intellectual. Intellectual means काफ़ी समझदार थे उनके हस्बैंड इंटेलिजेंट थे उनकी हेल्प से शी सेट अप अ स्कूल फॉर गर्ल्स इन 1909 in Bhagalpur. After the death of her husband, she went to Calcutta and opened Shekhawat Memorial Girls School. अपने हस्बैंड की डेथ के बाद वो कलकत्ता चले गए और वहाँ पर उन्होंने गर्ल्स एजुकेशन के लिए एक स्कूल ओपन किया दैट इज़ शेखावत मेमोरियल गर्ल्स स्कूल लेटर दिस स्कूल बिकम हाई स्कूल जी पहले प्राइमरी स्कूल था बाद में इस स्कूल को और बढ़ाया गया मीन्स हाई स्कूल बना दिया गया 10th तक शी वॉज ए गिफ्टेड राइटर इट मीन्स वे बहुत अच्छी लेखिका थी अच्छे से 24 बात होती थी एक्सप्लेन करती थी जो पढ़ने वाले के दिलों को छू जाता था शी रोट अबाउट द ऑप्रेशन डिस्क्रिमिनेशन एंड सफरिंग ऑफ द वुमेन्स इन द सोसाइटी उन्होंने लिखा है कि जो सोसाइटी में वुमेन्स के था जो भी गलत हो रहा था कैसे उन्हें दबाया जाता था डिस्क्रिमिनेशन मीन्स भेदभाव किया जाता था या जो भी उन्हें कष्ट या हार्डशिप का सामना करना पड़ रहा था सोसाइटी में उसके बारे में उन्होंने लिखना शुरू किया शी रोट ए शॉर्ट स्टोरी इन इंग्लिश कार्ड सुल्ताना's ड्रीम एक शॉर्ट स्टोरी लिखी है उन्होंने इंग्लिश में सुल्ताना's ड्रीम सुल्ताना इज़ अ इमेजिनरी करेक्टर है कि वो जो लड़की है उसका ड्रीम क्या है उसका सपना क्या है वो क्या चाहती है She wrote in that story about the duties and the role of men and women are exchanged कि किस प्रकार जो ड्यूटीज़ और जो रोल सोसाइटी में मैन और वुमेन्स के डिवाइड किए गए हैं कैसे हम उनको एक्सचेंज कर सकते हैं ये उसका सपना है कि जो काम मैन करते हैं अब वो वुमेन्स करेंगी और जो वुमेन्स करती हैं वो मैन करेंगे इट वाज द ड्रीम ऑफ द कैरेक्टर ऑफ दैट स्टोरी दैट इज़ Sultana. It is a topsy-turvy world in the story where women take the place of men. Her novel Padam Mark exhorted women to improve their condition and the society through individual as well as collective action. इसके अलावा उन्होंने एक नावल लिखा है पदम मार्ग जिसमें उन्होंने वुमेन्स को इनक्रेज किया है कि वो सोसाइटी में अपनी कंडीशन को अपने स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए व्यक्तिगत और मीन्स अकेले भी और मिलजुल कर काम करेंगी तभी उनकी कंडीशन इम्प्रूव हो सकती है दैट्स ऑल अबाउट रुकैया शेखावत हुसैन इसके अलावा और भी वुमेंस रिफॉर्मर हैं जिन्होंने सोसाइटी में वुमेंस की कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए कार्य किया है एंड बिकॉज ऑफ ऑल दिस women and their efforts, women of the today are enjoying their rights and status in the society. Now we will study about the role of constitution in improving the status of women in the society. The constitution provides equal status to both men and women in every sphere of the life. Still some inequalities exist between their status. चाहे कॉन्स्टिट्यूशन ने दोनों को मैन और वुमेन को सेम राइट्स दिए हैं
पर उसके बावजूद सोसाइटी में अभी भी कुछ इनक्वालिटीज़ हैं, असमानताएं हैं। टू रिमूव सम ऑफ दीज इनक्वालिटीज़, इन इनक्वालिटीज़ को दूर करने के लिए 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मीन्स चेंज करना, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया गया in 1993 to provide 33% reservation to women in पंचायती एंड अर्बन लोकल बॉडीज़। जो लोकल बॉडीज़ हैं मीन्स पंचायती राज और अर्बन एरिया में म्यूनसिपैलिटीज़, वहाँ पर 33% रिजर्वेशन की गई वुमेंस के लिए, कि मीन्स जितनी भी सीट्स होंगी पंचायत में, जहाँ अर्बन लोकल बॉडी म्यूनसिपैलिटीज़ में, वहाँ पर 33% सीट जो होंगी वुमेंस के लिए रिजर्व होंगी। मीन्स वुमेंस रिप्रेजेंटेटिव उन सीट्स पर इलेक्ट किए जाएंगे सो दैट दे कैन रिप्रेजेंट द प्रॉब्लम्स ऑफ द वुमेन्स एंड सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। These amendments as a policy of affirmative actions served as a major breakthrough to ensuring women's equal access, increased participation in the political arena, has rapidly empowered the women। जिस कारण से वुमेन की ज़्यादा पार्टिसिपेशन बढ़ी है पॉलिटिकली, और जिससे वुमेन एम्पावर्ड मीन्स सशक्त बनी है, अपनी पावर का पूरा इस्तेमाल कर सकती है। दिस हैज़ boosted their confidence, changed the perception regarding their contribution made to society, and improved their status and position। इन्हीं अमेंडमेंट्स के कारण उनके अंदर कॉन्फिडेंस भी बढ़ा है कि वे भी मेन से पीछे नहीं हैं, वो भी सोसाइटी के लिए कुछ कर सकती हैं। और जो कि उनके लिए रिसेप्शन, ये धारणा बनी हुई थी कि वुमेन्स इंटेलिजेंट नहीं होती हैं या सोशल वेलफेयर के लिए कोई काम नहीं कर सकती, उन्होंने इस धारणा को जुटला दिया है और अपना स्टेटस और पोजीशन को सोसाइटी में इम्प्रूव किया है। लीगल प्रोटेक्शन इज़ गिवन टू वुमेन अगेंस्ट एनी डोमेस्टिक वायलेंस अंडर द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट इम्प्लीमेंटेड इन 2006। इसके अलावा 2006 में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बनाया गया है, जिसके अकॉर्डिंग जो घरों में वुमेन्स के साथ गलत बिहेव किया जाता है, जहाँ उनको मारा जाता है, डराया धमकाया जाता है, उसके अगेंस्ट वे कानून से प्रोटेक्शन ले सकती हैं, उनको वहाँ पर कंप्लेंट कर सकती हैं। A similar guideline was found by Supreme Court in 2007 to protect the women against sexual harassment at the workplace and within educational institution। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने 2007 में एक प्रोटेक्शन एक्ट बनाया था कि अगर कोई वुमेन के अगेंस्ट किसी भी वर्क की मीन्स जहाँ पर वो काम करती हैं, चाहे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, स्कूल, कॉलेजेस, कहीं भी उनके साथ सेक्सुअल हरासमेंट मीन्स गलत बिहेव किया जाता है, तो वो कंप्लेंट कर सकती हैं। The positive change that women enjoying today have been possible because of the implementation of the government welfare programs। आजकल जो वुमेन्स हैं फ्रीली अपने राइट्स को एंजॉय कर रही हैं, ये चेंजेस इसीलिए आए हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत से वेलफेयर प्रोग्राम भी शुरू किए हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया particularly by Ministry of Women Child Development initiated many programs for the development of female children in terms of sending them to school, their regular health checkups and आंगनवाड़ी। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इन्होंने बहुत से प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं, किस लिए? जो फीमेल चिल्ड्रन होते हैं उनको स्कूल भेजा जाए, उनका रेगुलर हेल्थ चेकअप किया जाए और उनके लिए आंगनवाड़ी भी खुलवाए गए हैं। अकॉर्डिंग टू 1961 सेंसस 15% ऑफ गर्ल्स वेंट टू स्कूल। इन 1961 में सिर्फ अगर देखा जाए तो 15% गर्ल्स ही थी जो स्कूल जाती थी, बट अब ये सिचुएशन चेंज हो चुकी है। अब उनकी परसेंटेज 54% थी 2001 में, जो बढ़कर 2011 में 65.46 हो चुकी है, बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड द डिफरेंट सोशल रिफॉर्मर्स।
Today, both boys and girls are treated equally, especially in the urban cities and towns where they enjoy equal privileges and rights. अगर आजकल देखा जाए तो बॉयज़ और गर्ल्स दोनों इक्वली ही बिहेव किया जाता है उनके साथ। मेनली अर्बन्स यानी सिटीज़ और टाउन्स में उनमें कोई फ़र्क नहीं किया जाता। उनको एक जैसी प्रिविलेज मीन्स सुविधाएं, फैसिलिटीज़ मिलती हैं, राइट्स मिलते हैं। Several anti-discriminatory laws have enabled girls to step forward and get involved in almost every sphere of their life. Active participation of the women to serve the armed force, police force, other domains of service as well as the business proves this point. इसके अलावा जो वुमेंस को ये राइट मिले हैं जिस कारण से वो हर एक लाइफ के किसी भी फील्ड में आगे आ रही हैं। और पहले जो फील्ड ऐसा माना जाता था कि मैन डोमिनेंट है, सिर्फ मैन ही वहाँ पर काम कर सकते हैं, वुमेन्स ने प्रूव कर दिया है कि वो भी उन कामों को अच्छे से संभाल सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आर्म्ड फोर्स, आर्मी में, पुलिस फोर्स और बिजनेस, हर तरह के उन कामों को पूरे अच्छे ढंग से कर इस बात को जुटला दिया है कि वो इंटेलिजेंट नहीं होती या फिर कोई भी अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन या मैनेज नहीं कर सकती कामों को। These are because of the efforts of the government welfare schemes and the social reformers. That's all about this chapter, the role of gender in the social and economic aspect. I hope all of you understand about the problems of the gender inequalities and how our constitution and different social reformers work to improve their status in the society. Thank you for watching this video.